हेलो फ्रेंड्स, चलिए रिवाइज करते हैं स्मॉल टॉपिक्स ऑफ ईएनटी टॉन्सिल. So at what age tonsil attains maximum size? So this is at 12 years, and from puberty involution starts of tonsil. Okay, palatine tonsils. Next is the what is the graveyard of ENT surgeon. This is the tonsillolingual sulcus. Tonsillolingual sulcus. Next, this is the pictorial representation diagram of external carotid artery. Its branches giving contribution to palatine artery. So main branch, the most important branch is tonsillar branch of ascending pharyngeal artery. Tonsillar. Sorry, listen again. So this is this should be the from facial artery, contribution of the facial artery, that is the ascending palatine artery. Ascending palatine artery is the most important branch for palatine tonsil. So what are the other branches? This is other branches are the dorsal lingual arteries, that from lingual artery. Next one is the tonsillar branch from ascending pharyngeal artery, and the uppermost is the descending palatine artery. Okay, so another picture, this shows a tonsillar bed. So just beneath tonsil कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? वी हैव ए paratonsillar vein. तो जब भी टॉन्सिल परफोरेट करके कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे आती है तो किसे चोट पहुंचाएगा? पाराटॉन्सिलर वेन. और इसके नीचे तीन एक पैरेलल स्ट्रक्चर जैसे दिख रही है, दैट इज इसमें यह है पी बी फेरिंजोबैसिलर फैशिया. इसके जस्ट नीचे है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और इसके जस्ट नीचे यह ग्रीन वाला है बक्कोफैरिंजियल फैशिया. सो बिटवीन टू फैशिया कौन कौन से फैशिया हैं? पी बी. दूसरा फैशिया है बी पी. दोनों के बीच में पी बी और बी पी के बीच में है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स. ओके, so next, so bed of tonsil, बेड ऑफ टॉन्सिल. इसमें कौन कौन से हैं? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड स्टाइलोग्लोसिस मसल. सुपीरियर टॉन्सिल and superior constrictor and styloglossus muscle. So we see the superior constrictor and styloglossus muscle. Okay, outside of superior constrictor muscle we have facial artery, submandibular salivary gland, medial pterygoid muscle and angle of mandible. Once more, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? फेशियल आर्टरी, सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, मीडियल टेरिगोइड मसल एंड एंगल ऑफ मैंडिबल. ओके, नेक्स्ट वन, acute tonsillitis in children. Most common organisms is beta hemolytic streptococcus. Most common organism is beta hemolytic streptococcus. And next one, they say most common lymph node involvement. Most common lymph node involvement is jugulodegastric lymph node. Okay, next one, fibroid variety is what type? It is a type of chronic tonsillitis. सो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का एक एग्जाम्पल है फिब्रॉइड वैरायटी. ओके, नेक्स्ट वन, एक्सेसिव ब्लीडिंग इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा. ओके, नेक्स्ट वन, टॉन्सिलर पेन इज़ रेफर टू ईयर. कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा? ग्लोसोफैरिंजियल नर्व. इसका नाम है जैकबसन नर्व. nerve.
नेक्स्ट वन। सो अब देखते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की वेराइटीज़। ओके, सो वी हैव थ्री वेराइटीज़: फॉलिकुलर, parenchymal and fibrotic tonsillitis or fibrotic tonsillitis. Okay, follicular, parenchymal and fibroid tonsillitis. Fibroid. Okay, fibroid tonsillitis. Sorry for this correction. This is the fibroid tonsillitis. So we have three variety: follicular, parenchymal and fibroid tonsillitis. Next is the chronic tonsillitis. Their clinical signs can be Irwin-Morris sign, bluish flushing of anterior pillars, and increased size of the jugulodigastric lymph node. Next is the complication of acute tonsillitis. It can convert into chronic tonsillitis, peritonsillar abscess, parapharyngeal abscess, cervical abscess. Acute otitis media, rheumatic fever, acute glomerulonephritis and subacute bacterial endocarditis. किससे होता है? स्ट्रेप विरिडांस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ दिस? एक पेशेंट है दिस और इसमें क्या है? येलोइश टॉन्सिल है और पेशेंट इज सिम्टम फ्री। छोटा सा पार्ट टॉन्सिल येलोइश है, पेशेंट सिम्टम फ्री है and it is drained easily. So this is a tonsillar cyst. Okay, next one. What is this? यह लुडविक एंजाइना। सो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सब लिंगुअल स्पेस में इन्फेक्शन है और यह इन्फेक्शन बाद में सब मैक्सिलरी स्पेस तक जा सकती हैं। तो कोई डेंटल इन्फेक्शन, डेंटोजेनिक ओरिजिन इन्फेक्शन यह नीचे की तरफ आ गई है। ओके, तो इस कंडीशन में टॉन्सिल पे कोई भी ग्रे वाइट मेम्ब्रेन नहीं चिपका हुआ होता है। ओके, सो दिस कंडीशन इस लुडविक एंजाइना, कोई भी किसी प्रकार का इसमें मेम्ब्रेन नहीं दिखता है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑन मेम्ब्रेन टॉन्सिल क्या होगा? स्ट्रैप इन्फेक्शन मेम्ब्रेन होगी, डिप्थेरिया मेम्ब्रेन होगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इन सब में मेम्ब्रेन हो सकता है। विंसेंट एंजाइना, ल्यूकीमिया, कैंडिडा, मैलिग्नेंसी एंड एप्टस अल्सर, ये सारी कॉजेज हैं जहाँ पे मेम्ब्रेन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन, विंसेंट एंजाइना इट इज़ बाय फ्यूसिफॉर्म बेसिलाई एंड स्पारोकिट्स। एग्जाम्पल है बैसिलस फ्यूसिफॉर्म्स एंड बोरेलिया विंसेंटी। सो इसमें क्या है? पेशेंट को लो ग्रेड फीवर हो सकती है एंड ग्रेइश मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल इसमें दिखेगी। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज द डिप्थेरिया। क्यों? बुल आई इसमें दिख रही है, बुल नेक, नॉट आई, बुल नेक दिख रही है एंड दिस इज ड्यू टू द swelling enlargement of cervical lymph node। cervical मेनली इसमें जुगुलोडिगैस्ट्रिक lymph node का खूब ज़्यादा swelling होगा एंड ऐसे डिप्थेरिया, सो दिस इज डिप्थेरिया, स्यूडो मेम्ब्रेन इसमें होती है, ग्रे वाइट अडेरेंट स्यूडो मेम्ब्रेन होगी या बहुत ही कस के जुड़ा हुआ होता है। सो ट्राई टू रिमूव विल कॉज ब्लीड ऑन रिमूवल। एक डेडली कॉज साइड इफ़ेक्ट्स कॉम्प्लिकेशन है इसका डिप्थेरिया का, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सो डिप्थेरिया क्या निकालेगा? एक्सोटॉक्सिन एंड दिस इज टॉक्सिन टू नर्व्स एंड हार्ट्स। तो क्या क्या हो सकता है? मायोकार्डाइटिस, कार्डिक एरिथमिया, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर, soft palate paralysis and soft palate paralysis,
बट नॉट हार्ड पैलेट पैरालिसिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्थेरिया में सॉफ्ट पैलेट पैरालिसिस हो सकती है बट नॉट हार्ड पैलेट पैरालिसिस, हार्ड पैलेट पैरालिसिस से नहीं होती है। सो ट्रीटमेंट इज़ व्हाट, एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन में सेंसिटिविटी बहुत सारे पेशेंट में हो सकती है। सो prior to administration of this antitoxin, testing is required और एंटीबायोटिक्स भी देना है। बेंजाइल पेनिसिलिन 600 mg 6 hourly फॉर 7 days। अगर सेंसिटिविटी इस चीज़ से है तो हमको देना होगा एरिथ्रोमाइसिन 500 mg 6 hourly orally। ओके, next is the diphtheria and staph carriers. They are the relative indication for surgery। कुछ सर्जरी इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टोमी इज अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, एज 3 साल से कम है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ओवर्ट और सबम्यूकोस क्रिप्ट पैलेट हो, अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक डिसीज हो जैसे डायबिटिक, कार्डिक डिसीज, हाइपरटेंशन एंड अस्थमा, मेंसेस आ रहा हो पेशेंट को। ओके, सो नेक्स्ट वन, पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी विद इन 24 आवर अगर ब्लीडिंग होता है, एक दिन के ही अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, इट इज़ नॉन एज रिएक्शनरी हेमरेज। अगर एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ही ब्लीडिंग है, दिस इज़ नॉन एज प्राइमरी हेमरेज। अगर 5 से 10 दिन के बीच में अगर ऑपरेशन के बीच में हेमरेज हो रही है, इट इज़ नॉन एज द सेकेंडरी हेमरेज। तो सेकेंडरी हेमरेज 5 से 10 दिन के बीच में हो रही है। नेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट रोज पोजिशन। इट कैन बी यूज फॉर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एडिनेक्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी के लिए, इन तीनों के लिए यूज़ होती है, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर direct laryngoscopy. So friends, thank you, please like and subscribe.